Hello everyone, welcome to Wings of Fire Academy, a place for free education. My name is Grace and today we are going to study class 7th English Bal Bharati, unit number 4, lesson number 4.3, The Red-Headed League. Learn in English with Hindi language. So let's start. The lesson, The Red-Headed League, is one of the 56 Sherlock Holmes short stories written by Sir Arthur. It involves mystery and suspense. Okay, the story is filled with mystery and the suspense which keeps the reader wanting to know more. It is about a pawnbroker named Mr. Wilson who comes to Sherlock Holmes and Watson and tells them about a strange business with a group of red-haired men. So let's start. First of all, we are going to read the passage. When I called upon my friend Mr. Sherlock Holmes, he was conversing with a visitor who was an elderly man with fairy red hair. Holmes introduced me to the visitor, Mr. Jabez Wilson. He was a pawnbroker. Holmes asked him to repeat his story for me. He began by showing us an advertisement in a newspaper. It read as follows, right? So let's see the first line. When I called upon my friend Mr. Sherlock Holmes, he was conversing with a visitor. जब मैंने अपने मित्र मिस्टर शेरलॉक होम्स को फोन किया तो वो एक विजिटर के साथ में बातचीत कर रहा था जो एक बुजुर्ग व्यक्ति था और जो लाल बालों वाला था। उसके जो बाल है वो लाल कलर के थे। Now Holmes introduced me to the visitor, Mr. Jabez Wilson. Now Holmes ने उस विजिटर से मिस्टर जैबेज विल्सन से मिलवाया. He was a pawnbroker और वो एक pawn broker था, means दलाल था like. Holmes asked him to repeat his story for me. He began by showing us an advertisement in a newspaper. It read as follows. So Holmes ने उसे मेरे लिए अपनी कहानी दोहराने के लिए कहा. उन्होंने हमें एक अखबार में विज्ञापन दिखाकर शुरुआत की और ये विज्ञापन या जो न्यूज़ थी, राइट, जो एडवर्टाइजमेंट थी न्यूज़पेपर में वो इस प्रकार से थी. To the Red-Headed League. There is a vacancy for a member of the league and the salary is £4 a week for nominal services. Red-headed men may apply in person on Monday at 11 o'clock to Duncan Rose at the office of the League, 7 Fleet Street. Now to the Red-Headed League. जो भी red-headed means लाल रंग के जिनके बाल है उसे कहा जाता है कि लाल सिर वाले संगठन या संस्था या लीग जिसे कहा जाता है उसके लिए. There is a vacancy. Vacancy means एक रिक्त पद है, वैकेंसी है. एंड द सैलरी इज £4 और उसका जो वेतन है सैलरी है वो £4 होगा अ वीक फॉर नॉमिनल सर्विसेज. और ये जो सैलरी है वो हर वीक को हफ्ते में दी जाएगी. रेड हेडेड मैन में अप्लाई इन पर्सन ऑन मंडे. और जो लाल सिर वाले जो भी लोग है, राइट, पुरुष है, वो इसे अप्लाई इस नौकरी के लिए इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो उनको क्या करना है, मंडे एट 11 o'clock. कहाँ आना है उन्हें, मंडे के दिन 11 o'clock को डंकन रोज जो एड्रेस है एट द ऑफिस ऑफ द लीग्स 7 फ्लीट स्ट्रीट और इस जगह पर इस पते पर आना होगा. The advertisement had appeared in newspaper 2 months ago. Mr. Wilson's assistant, Vincent Spaulding, had shown it to him. Mr. Wilson liked his assistant Spaulding. Now ये जो एडवर्टाइज था, विज्ञापन था, वो 2 महीने पहले था जो अखबार में छपा था, राइट. मिस्टर विल्सन असिस्टेंट, जो मिस्टर विल्सन का असिस्टेंट था, विंसेंट स्पोल्डिंग उसका नाम था, ये असिस्टेंट था. सो उसने उस एडवर्टाइज को न्यूज़पेपर से दिखाया था. मिस्टर विल्सन लाइक्ड हिज असिस्टेंट स्पोल्डिंग और मिस्टर विल्सन उसे लाइक करते थे. ही वॉज स्मार्ट, इफिशियंट एंड वर्क फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस. और वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, एफिशिएंट था, अच्छे से काम करता था और आधी सैलरी लेता था. हाफ द नॉर्मल वेजेस, जितने उस तनख्वाह होनी चाहिए थी उससे कम ही लेता था.
But the assistant also had his faults. लेकिन उसमें कुछ कमियां भी थी, faults भी था. और वो क्या था, कमजोरी क्या थी? Every now and then he left work and went down into the cellar to develop photographs. Photography was his hobby. लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या था कि वो, उसमें एक दोष था कि वो हर बार अपना काम छोड़कर फोटोग्राफी करने के लिए, तस्वीरों को विकसित करने के लिए तहखाने में चला जाता था और फोटोग्राफी उसका शौक था, उसकी हॉबी थी. Spalding showed the advertisement to Mr. Wilson and exclaimed to him that an American millionaire, Mr. Askia Hopkins, had founded the famous Red-Headed League to help all redheads like himself. Spalding urged Mr. Wilson to apply for the job. So the two of them went to the address given in the advertisement, right? So ये जो Spalding था उसका assistant, right? Now he showed advertisement to Mr. Wilson. उसने ही वो एडवर्टाइज दिखाया और उसने एक्सप्लेन भी किया कि अमेरिकन मिलेनियर जो है, राइट, करोड़पति जो है, मिस्टर एस्किया हॉपकिंस, राइट, सो उन्होंने ये बनाया है रेड हेडेड लीग जो है, ये जो संस्था है उन्होंने बनाई है द फेमस रेड हेडेड लीग टू हेल्प ऑल रेड हेड्स लाइक हिमसेल्फ. और ये जो लीग उसने बनाई है, राइट, ये जो संस्था या संगठन जो उसने बनाई है, सो रेड हेड्स के मदद के लिए ही उन्होंने इसकी स्थापना की है. स्पोल्डिंग अर्ज मिस्टर विल्सन टू अप्लाई फॉर द जॉब. और स्पोल्डिंग ने मिस्टर विल्सन को बहुत ही ज्यादा आग्रह किया कि वो इसके लिए अप्लाई करे, इस जॉब के लिए. सो द टू ऑफ देम वेंट टू द एड्रेस गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट. सो मिस्टर विल्सन और स्पोल्डिंग ये दोनों ही जो पता दिया था उस एड्रेस पे वो चले गए. Fleet Street was full of red-headed people. Mr. Wilson thought that with so much competition he would not get the job. He wanted to go back, but Spalding pushed through the crowd and took Mr. Wilson to the office. Now Fleet Street जहाँ पे ऑफिस था, राइट, जहाँ पर इंटरव्यू होने वाला था, सो वो फुल भरा हुआ था रेड हेडेड पीपल से. मीन्स वहां पर जो इंटरव्यूअर आए थे, राइट, वो सारे रेड हेडेड पीपल थे. मीन्स उन सभी लोगों के बाल जो है लाल कलर के थे. मिस्टर विल्सन थॉट, अब मिस्टर विल्सन ने देख के सोच लिया कि यहाँ पर तो बहुत सारा कंपटीशन है जॉब के लिए, सो मुझे यहाँ पर कोई जॉब नहीं मिलेगा. लेकिन बट स्पॉल्डिंग पुश थ्रू द क्राउड एंड टुक मिस्टर विल्सन टू द ऑफिस. लेकिन स्पॉल्डिंग ने क्या किया, उन्हें आग्रह करते हुए, उन्हें पुश करते हुए क्राउड से लेकर ऑफिस तक वो लेकर चला गया. देयर वॉज नथिंग इन द ऑफिस बट अ कपल ऑफ चेयर्स एंड अ टेबल. और उस ऑफिस में और कुछ नहीं था, सिर्फ 2 चेयर्स थे और एक टेबल था. अ रेड हेडेड मैन सैट बिहाइंड द टेबल. और एक रेड हेडेड मैन टेबल के पीछे बैठा हुआ था. ही वॉज मिस्टर डंकन रोज. और उसका नाम था मिस्टर डंकन रोज, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेड हेडेड लीग. और वो रेड हेडेड लीग का रिप्रेजेंटेटिव था. He was very pleased to see Mr. Wilson and announced immediately that he was well suited for the job. He shook hands with Mr. Wilson, congratulated him, and told all other candidates to go back. So, जहाँ पर ऑफिस में, राइट, मिस्टर विल्सन वहां पर चले गए और जैसे ही डंकन रोज ने, जो कि प्रतिनिधि थे वहां के, राइट, सो उन्हें देखकर वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने तुरंत उनसे मिलने के बाद में, मिस्टर विल्सन से मिलने के बाद में घोषणा कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया कि नौकरी उन्हीं के लिए, राइट. सो उन्होंने मिस्टर विल्सन से हाथ मिलाया, उन्हें बधाई दी, मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशन किया. और वो सभी वहां पर जो भी उम्मीदवार, वहां पे इंटरव्यू जो कैंडिडेट्स आए थे, उन सभी को वापस जाने के लिए कह दिया. Mr. Duncan Rose explained that Mr. Wilson would have to be in the office from 10 to 2. Now, Mr. Duncan Rose, जो कि वहाँ के जो मीन्स प्रतिनिधि थे, मेन जो पर्सन थे, सो उन्होंने एक्सप्लेन किया जॉब कैसा होगा मिस्टर विल्सन को, राइट. सो उन्होंने कहा कि ऑफिस में आपको रहना होगा 10 to 2, मीन्स 10 बजे से लेके 2 बजे तक आपको ऑफिस में रुकना होगा.
If he left the office, he would lose the job. अगर उन्होंने ऑफिस छोड़ा इस टाइमिंग में 10 to 2, इस टाइमिंग के भीतर अगर उन्होंने ऑफिस को छोड़ा, राइट, ऑफिस से अगर चले गए बाहर तो वो अपनी जॉब को खो देंगे. Spalding assured Mr. Wilson that he would look after Mr. Wilson's business in his absence. Now Mr. Wilson का जो असिस्टेंट था स्पॉल्डिंग, उसने क्या किया, उसने उनको आश्वस्त किया, एश्योर्ड किया कि वो उनका जो काम है, उसका उनका जो शॉप है, राइट, बिजनेस जो है वो उनके एब्सेंस में अच्छे से संभालेगा. द पे वॉज फिक्स्ड एट 4 pounds a week, और जो उनकी सैलरी थी वो तय हुई थी, हर वीक उनको मिलने वाले थे 4 pounds. एंड द वर्क, सेड मिस्टर विल्सन. सो मिस्टर विल्सन ने पूछा कि सैलरी तो ठीक है, टाइमिंग भी फिक्स हो गया है, लेकिन काम क्या करना होगा. You have to copy out the Encyclopedia Britannica. ना उन्हें काम क्या दिया गया था कि आपको Encyclopedia Britannica की नकल करनी होगी, कॉपी करनी होगी. The pay was very good and the work was light. Mr. Wilson accepted the job and began his work the very next day. Now पे मीन्स सैलरी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, और जो वर्क था, जो काम उनको करना था वो बहुत ही लाइट था, मीन्स बहुत ही अच्छा था, बहुत ही हल्का सा काम था, कुछ ज्यादा टेंशन वाला नहीं था. और मिस्टर विल्सन ने उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया. मिस्टर डंकन रोज वॉज देयर इन द ऑफिस टू सी दैट मिस्टर विल्सन डिड हिज वर्क प्रॉपरली. और मिस्टर डंकन रोज जो थे वो ऑफिस में आते थे, राइट, और वो देखते थे कि मिस्टर विल्सन अपना काम प्रॉपरली कर रहे. और सेकेंड थिंग वो देखते थे कि वो ऑफिस से बीच में ही ऑफिस को ना छोड़े, मीन्स बाहर ना निकले. एंड डिड नॉट लीव द ऑफिस. ही टोल्ड मिस्टर विल्सन टू स्टार्ट विद द लेटर ए. और उन्होंने मिस्टर विल्सन से कहा कि जो काम है सो उस ए लेटर से उन्हें स्टार्ट करना होगा. मिस्टर विल्सन रोट diligently for 4 hours without leaving his place. So मिस्टर विल्सन भी वहां पर लिखने का काम करते थे. उन्होंने ए अक्षर से शुरुआत की थी और वो 4 घंटे विदाउट लिविंग ऑफिस, राइट, वो अपना काम करते थे. मिस्टर रोज वुड ड्रॉप इन फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सी दैट ऑल वाज राइट विथ मिस्टर विल्सन. और मिस्टर डंकन रोज जो थे वो बीच बीच में आकर उन्हें देखते थे कि उनका काम अच्छे से चल रहा है या नहीं. एट 2 o'clock he bade Mr. Wilson good day and locked the door of the office. और 2 बजे, जब 2 बजते थे दोपहर के, सो मिस्टर विल्सन क्या करते थे, मिस्टर विल्सन को वो डंकन रोज जो है वो गुड डे कहते थे और अपने ऑफिस को बंद कर देते थे, लॉक कर देते थे. दिस वेंट ऑन डे आफ्टर डे. और ये ऐसे ही हर दिन ऐसे ही होता चला गया, राइट. मिस्टर होम्स सेड मिस्टर विल्सन, एंड ऑन सैटरडे आई गॉट माय सैलरी, राइट. नाउ दिस वेंट ऑन डे आफ्टर डे मिस्टर होम्स सेड मिस्टर विल्सन. सो मिस्टर विल्सन ये जानकारी दे रहे थे, राइट. सो उन्होंने मिस्टर होम्स को कहा कि ये हर दिन ये ऐसे हो रहा था, दिन के बाद दिन चला जा रहा था और मेरा काम चल रहा था. एंड ऑन सैटरडे, और सैटरडे के दिन, आई गॉट माई सैलरी, और मुझे सैलरी भी मिल गई. इट वॉज द सेम नेक्स्ट वीक एंड द नेक्स्ट सेम द वीक आफ्टर अ फ्यू डेज. मिस्टर डंकन रोज केम इन ओनली वंस इन अ वाइल एंड आफ्टर अ टाइम he did not come in at all, right. So ऐसे ही चलता गया हर हफ्ते, right. उन्हें सैलरी मिलती थी और हफ्ते के हफ्ते आगे जा रहे थे, दिन गुजर रहे थे, right. सप्ताह के बाद ऐसा ही कुछ हुआ और कुछ दिनों के बाद में जो डंकन रोज है, जो बार बार आकर मिस्टर विल्सन को देखते थे कि उनका काम सही चल रहा है, सो उनका आना भी अभी कम हो गया था. वो एक ही बार में आते थे और अब एक समय के बाद में उनका आना ही बिल्कुल बंद हो गया. Mr. Wilson continued, 8 weeks had passed like this, and I had written about Abbott's Ashery, etc., and hoped that I might get on to B soon.
And then suddenly the whole business came to an end. Now Mr. Wilson continued, right? तो मिस्टर विल्सन ने कहा कि इस तरीके से 8 सप्ताह बीत चुके थे, राइट? 8 हफ्ते मीन्स 8 वीक्स हो चुके थे मेरे काम को, राइट? और अभी ए जो है वो खत्म होने पर था, ये ए अल्फाबेट खत्म होने पर था और 20 की शुरुआत में बहुत ही जल्दी करने ही वाला था, बट सडनली अचानक से ही क्या हो गया, पूरा बिजनेस जो है, पूरा कारोबार ही समाप्त हो गया। टू एन एंड, होम्स आस्क्ड। टू एन एंड मीन्स व्हाट, राइट? होम्स ने पूछा कि इसका अंत मीन्स क्या? यस सर, दिस मॉर्निंग आई वेंट टू माई वर्क एज यूजुअल एट 10 o'clock, but the door was shut and locked with a little note nailed on it. It said. ना उन्होंने कहा, जी हाँ श्रीमान, राइट? मैं हमेशा की तरह 10 बजे अपने काम पर चला गया, लेकिन वहां का जो ऑफिस का दरवाजा है वो बंद था और उस दरवाजे पर एक नोट लिखा हुआ था, राइट? और जिस पर लिखा गया था, द रेड हेडेड लीग इज डिसॉल्व्ड October 9, 1880। नौ वहां पर लिखा गया था द रेड हेडेड लीग को भंग कर दिया गया, डिसॉल्व किया गया, बंद किया गया है, राइट? आई वॉज शॉक्ड, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। और मैं पूरा चौंक गया था ये पढ़कर कि ऐसे कैसे हो गया और मुझे क्या करना है ये पता नहीं था। मिस्टर विल्सन वेंट ऑन विथ हिज स्टोरी। आई मेड इंक्वायरीज एट द नियर बाय ऑफिसेस, but none of them knew anything about the league. The rooms had been rented under a false name. Now Mr. Wilson अपनी कहानी के साथ गए, राइट? और उन्होंने कहा कि मैंने आसपास के ऑफिसेस में, कार्यालयों में पूछताछ की, लेकिन उनमें से किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और जो भी रेंट से वो ऑफिस लिया गया था, राइट, किराए से लिया गया था, वो भी झूठे नाम से लिया गया था। I went home and asked my assistant Spalding for advice. और जब मैं घर गया तो मैंने अपने असिस्टेंट स्पॉल्डिंग को, राइट, उससे पूछा, उस सहायक को पूछा, उसकी सलाह ली, बट ही कुड नॉट हेल्प मी इन एनी वे। लेकिन वो किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पाया। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अबाउट द लीग, और मुझे इस लीग के बारे में पता करना है कि क्या हुआ। मिस्टर होम्स, who they are and why they played this prank upon me। और वो पूछ रहा था कि मिस्टर होप वो कौन थे और उन्होंने ऐसा प्रैंक मेरे ऊपर क्यों किया। द होल थिंग इज अ मिस्ट्री, और ये पूरा का पूरा जो प्रैंक हुआ, ये जो भी है, ये पूरा रहस्य भी ही बना हुआ है। दैट इज वाई आई केम टू यू, और इसलिए मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, और मैंने आपके बारे में बहुत ज्यादा सुना है। Holmes found Mr. Wilson's story very unusual. He asked Mr. Wilson, this assistant of yours who first called your attention to the advertisement, what is he like? Now Holmes को मिस्टर विल्सन की जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल लगी, राइट? सो उन्होंने पूछा कि आपका जो असिस्टेंट है स्पॉल्डिंग, राइट, सो वही था पहला जिसने कि आपका ध्यान आकर्षित किया था उस एडवर्टाइजमेंट की ओर। सो वो कैसा है, किस प्रकार का व्यक्ति है? सो उन्होंने बताया, स्मार्ट, स्टाउट विथ नो हेयर ऑन हिज फेस, ही हैज अ व्हाइट स्प्लैश ऑफ एसिड ऑन हिज फोरहेड। सो उन्होंने बताया कि वो छोटा सा है, नाटा है, जिसके चेहरे पर कोई बाल नहीं है, उसके माथे पर एक सफेद रंग का छींटा है, लाइक एसिड से शायद वो हुआ है। I thought as much, said Mr. Holmes. Is he still with you? So Holmes ने क्या कहा? I thought as much, said Mr. Holmes. Mr. Holmes ने कहा कुछ सोचते हुए कि क्या वो अभी आपके साथ में ही है? Oh yes sir. So उन्होंने कहा जी हाँ। That will do, Mr. Wilson. तो ये ऐसे ही होगा। I can give you my opinion on this subject in a day or two. Today is a Saturday, and by Monday we may come to a conclusion. Right? That will do, Mr. Wilson.
I can give you my opinion, right? So उन्होंने कहा कि हम करेंगे, हम देखेंगे, राइट, और मैं अपनी जो राय है इस विषय पर, राइट, इसके कंक्लूजन को मैं आपको बताऊंगा, राइट। टुडे सैटरडे है, आज शनिवार है, सो सोमवार तक कुछ ना कुछ कंक्लूजन पर मैं आ ही जाऊंगा और आपको इसका निष्कर्ष क्या है वो बता दूंगा। ओके, let's see the hard word meanings. First one, fiery, it means glowing. Second word, pawnbroker, it means person who lends money at interest when things are kept with him till the loan is repaid. Third word is efficient, it means careful. Fourth word is assured, it means guarantee. Fifth word, diligently, it means carefully, sincerely. Next word is bade, it means to tell. Seventh word is dissolved, disbanded, it means here it means the organization has come to an end. Eighth word is league, it means an association. Ninth word is prank, it means evil deed. Tenth word is foiled, it means spoiled, laid waste, prevented. Next word is splash, it means a mark. 12th number word is strand, it means famous place in London. Next word cellar, it means a room used for storage under a building. Next word take the criminals by surprising, it means catch. Next word object, it means purpose, reason. And last word is stop all the holes, it means close all the routes by which criminal may escape or run away. Okay, so today we learn a 4.3 number lesson, the Red Headed Leaf part 1. पार्ट 2 के लिए आप चैनल प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, राइट। तो इसके क्वेश्चन आंसर आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन so you'll get the notification of the new video. Thanks for watching.